आज का हमारा स्पीकर है पार्थ जोशी। नाउ आई विल हैंड ओवर टू पार्थ जोशी। Hello, a very good warm evening to all of you. I'm Parth Joshi from Jamnagar, and I want to tell you about Anvikshiki, the art of strategic thinking. Anvikshiki is a Prathama Vidya. So, before taking any other Vidya, Anvikshiki is very much important. So, let's say, I know that all of you are very curious to know what Anvikshiki is. Actually, I text sir also asked me what is this? I mean, what is Anvikshiki? Then I said, sir, that it's strategic thinking. So, yes, I want to say you two stories. Once, Chanakya, before knowing about Chanakya, you should know three things, three C's: Chanakya, Chandragupta, and Chatura. Chandragupta is a Shishya, Chanakya is a Guru, and Chanakya is making Chandragupta Chatur. And we can be Chatur while learning this Anvikshiki. So, yeah. Once Chandragupta was sitting in peace, Chanakya was also there. And suddenly, one soldier came and said, Maharaja, Maharaja, uh, Maharaja, Maharaja. He was so panicked. Chandragupta said, "What happened? What happened?" Uh, he said, "Attack, attack! Enemy attacked us." Then Chandragupta was like, "Oh, now what to do? What to do?" Then Chandragupta think and uh, he asked, "How many soldiers are there?" He said, 10,000 soldiers. Chandragupta, oh, 10,000. Then he asked his Senapati, Senapati, हमारे पास कितने soldiers हैं? Senapati, hardly we have 2 to 3,000. Oh, now what to do? Everyone was talking about war and all of that. Chandragupta was so panicked. Then उसको लगा कि अभी चाणक्य को बुलाना चाहिए. गुरुजी कहाँ हो आप? चाणक्य was chill. He was sitting in a peace. Chandragupta, Guruji, attack! Enemy attacked us. So Chanakya said, "Yeah, I know. First calm, be calm." Chandragupta, "Sir, attack!" Chanakya is like, "Yeah, I know, but first be calm." Then Chanakya asked, "How many number of soldiers do they have?" Chandragupta said, 10,000. Chanakya, "How many we have?" Chandragupta, 2 to 3,000, and maybe we can add more 500 more, but not that much. Chanakya, now be calm and be yogi. Chandragupta like, enemy attacked us, and now you are saying that I should be yogi. You mean I should do meditation? We don't have time. Chanakya was like, first be calm, take a 10 seconds or 20 seconds. Calm your mind, look at the numbers. You have 5,000, 2 to 3,000 soldiers, and they had 10,000. So then Chanakya asked, "How many elephants do they have?" Chandragupta said, "I don't know." Then search for it. Immediately, soldier gone and came and said, uh, "They have no elephants." Then Chanakya said, "Ashwadhyaks ko bulao." Ashwadhyaks आया. चाणक्य सेड, हमारे पास कितने हाथी है? अश्वाध्यक्ष, बहुत नहीं, कितने? He said, we have 20. How many you can make ready in 5 minutes? Next 5 minutes. Ashwadhyaksh was like, 5. I want all 20 in just 5 minutes. Ashwadhyaksh was like, okay, sir.
बाकी सब देख रहे थे ये सब क्या चल रहा है, 10,000, 2,000, 10,000, 3,000, elephant 20, 0. Everyone was like, then Chanakya said, get them ready with my special liquor that I have given. Ashwadhyaksh was, yes sir. Then at the time of war, इस तरफ थी चंद्रगुप्ता की सेना, इस तरफ थी एनिमी सेना, दोनों आमने सामने आ गए. तब भी चाणक्य बोले, अश्व को छोड़ो. Suddenly 20 drunk elephants are running towards them, destroying their soldiers and all. Then suddenly they understood that we are gonna lose, so they are gone. Chandragupta was, Guruji, हम जीत गए. Chanakya was like, even if you win the war, analyze what was the problem. Even sir is saying me that analyze your game after winning. Yes. So it was like, then Chanakya said, don't you know Anvikshiki? Guruji. Chanakya said, इस बार तो मैं था इसलिए बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. और अभी जब भी कोई प्रॉब्लम हो, थिंक अबाउट Anvikshiki. चंद्रगुप्ता बोल, कुछ पढ़ा तो था, गुरुजी ने सिखाया था, लेकिन बस भूल गए. That's why the guru is very important. Sometimes when you are not studying all of this, then you may forget. That's why you need guru, so he can remember you. So then he remember. Anvikshiki. What is Anvikshiki? Yeah, Sankhya plus Yoga plus Lokaya. Sankhya, Yoga, Lokaya. So, okay, Sankhya means look at the numbers. Yoga means be calm and look at the situation. And Lokayata means help, seek for help. So, Anvikshiki is Sankhya, Yoga, Lokaya. Then another day, Chandragupta was sitting in his kingdom, and they are like, Guruji, Maharaja, फिर से attack. They are attacked once again. They attacked once again. Now they have 200 elephants also. 10,000 soldiers with 200 elephants. Chandragupta was, okay. Now you collected information. Then he think about that. Then even though he asked Chanakya, because कुछ भी हो गुरुजी को तो पता नहीं चाहिए. So Chanakya came and everyone was in the panic. Not only Chanakya and Chandragupta was like, they both were calm. So Chanakya said, did you think about Anvikshiki? Chandragupta, yes Guruji. Then now what to do? Chandragupta called their department of crocodile. They are like, वो जो हेड ऑफ क्रोकोडाइल आया उसको बोला, हमारे पास कितने क्रोकोडाइल है, वॉर क्रोकोडाइल. So he was like, we have 50 crocodiles. Now everyone was like, 200 elephants, 10,000 soldiers, and crocodile, what they are gonna do? Then at the war time, Chandragupta sent crocodile first, and all of you know that elephants afraid of crocodiles. And when the crocodiles came, elephants started shivering and turned around and destroyed their soldiers. Now Chandragupta was like, is baar bhi bach. That's why the Anvikshiki is very important. That you have to be calm, then you have to think strategically, and then you need, even if you need help, then go for it.
So now once again, now Chanakya is not there. Chandragupta was now the king of whole India. So he was like, once again, one soldier came and said, Guruji, Guruji, now another enemy attacked us. So Chandragupta was like, okay, okay. Now I don't have my guru, because at that time Chanakya went into the jungle and he took sannyas. So, Guruji, Guruji, another enemy attacked us, and now they have a crocodile also. Then Chandragupta was like, okay, even if I don't have Guruji, I have his knowledge. So he said, okay, they have 10,000 soldiers, 200 elephants, and 50 crocodiles also. So now I have to prepare. He said. Then he remembered that Saptanga model. Swami Amatya Janapada Durga Kosa Danda Mitra. Okay, I can call my Mitra. He said, जल्दी से मेरे मित्र जो परम मित्र है नजदीक के किंगडम का उसको बुलाया जाए. Together we will defeat the enemies. So friend, even if Guruji is not around there, you have to be calm and you have to think steady. So this is the Anvikshiki, and we can learn much more about Anvikshiki and all. Thank you. Thank you, Parth. तो Hope all of you enjoy. या श्योर. तो फाइनली एक बार जरा हमको फिर से बोल दे तो हमको याद रह जाए कि ये वर्ड एक बार फिर से दोहरा दे और उसका मीनिंग बोल दे और ये स्टोरी का मॉरल बता दे. हाँ. Anvikshiki. Anvikshiki is Sankhya plus Yoga plus Lokayat. Sankhya means numbers. Yoga means calm, be meditative. And Lokayata means if you need help, then seek for help. So Anvikshiki means Sankhya plus Yoga plus Lokayata. And I have mentioned this Saptanga theory in first lecture also. Saptanga model is Swami Amatya Janapada Durga Kosha Danda Mitra iti Prakriti. राइट. ओके, थैंक यू पार्थ. तो हम लोग उसको अगर थोड़ा प्रैक्टिकली रिलेट करके सोचें, क्योंकि ये पार्थ ने तो सब कोर्स किया है तो उसके लिए सब इजी है, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली समझना थोड़ा मुश्किल है उसको रिलेट करना. तो हम अगर सोचे तो पार्थ बताना कि मैं सही समझाऊं कि नहीं. तो हम अगर उसको इंटरप्रेट करें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से तो उसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे लोगों की हेल्प लेने के लिए हम डरते हैं या लोग कैसा सोचेंगे, हम किसी को पूछना है कुछ किसी के बारे में तो भी हम ऐसा डरते हैं ना कि हम पूछेंगे तो कैसा लगेगा कि इसको इतना भी पता नहीं है, या कुछ हेल्प मांगेंगे तो अरे इसके पास इतना भी नहीं है, हमारे पास मांग रहा है. राइट. तो मुझे लगता है कि एक बात हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किसी से मांगने से डरने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले ये बात थी कि लोगों से कुछ हेल्प मांगने के लिए हमें शर्म नहीं करनी है, किसी से कुछ भी हम मांग सकते हैं. और जैसा मैंने सेशन में भी मैंने बोला है, कोई भी लोग हमें जज नहीं कर सकते. हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है सपोज, तो भी कोई हमें जज नहीं कर सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इंटेलेक्ट, ये कुछ भी किसी भी इंसान को जज करने के लिए क्राइटेरिया नहीं है. किसी को भी जज करने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं. अगर हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, किसी को हार्म नहीं करते, तो उसका मतलब हम सही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं. हमको और कुछ पता नहीं है, हम गरीब हैं, हम छोटी झोपड़ी में रह रहे हैं, या हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इससे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब क्राइटेरिया नहीं है किसी को हमें जज करने के लिए. राइट. तो कहने का मतलब ये है, जो हम फिर से कोरिलेट करें अगर, तो कि किसी से भी पूछने में डरने की जरूरत नहीं है. हमारे पास कुछ भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, या कुछ हमें हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो किसी को भी पूछो. ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो मना कर देगा. तो डरो मत, इंसल्टिंग फील मत करो अगर कोई मना करता है तो. राइट. और दूसरी बात यह है कि हेल्पफुल रहो. जैसे उसने बोला कि हेल्प लो,
तो अगर हमारे पास से कोई हेल्प लेने आ गए, जैसे चंद्रगुप्त या चाणक्य हमसे कुछ मांगने के लिए आ गए, तो हमें भी हेल्प करनी है। तो हेल्प के लिए हमें क्या सोचना है कि जैसे आजकल कोई छोटी सी हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं है, या किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अपनी ये चैनल है, अभी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उसके कितने सब्सक्राइबर है? 13 सब्सक्राइबर कितने हैं उसके? 13 और हमारे दोनों ग्रुप है जो बॉयज और गर्ल्स, उसमें मिला के मेंबर्स कितने हैं? 60 राइट। तो अभी इसमें हेल्प करने में कितना टाइम जाता है? कोई इंटरनेट भी यूज नहीं होता, डेटा भी यूज नहीं होता, सब जाके चैनल पर जाते हैं, सब्सक्राइब करना है। तो इस तरह की हेल्प है जिसकी सबको जरूरत है अभी। जैसे अभी किसी ने फोटो पोस्ट कर दिया, नियति ने सपोज फेसबुक पे, तो उसको लाइक करने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? वो खुश हो जाएगी राइट। तो उसको लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। फोटो देख लेंगे, मन मन तारीफ भी करेंगे कि हाँ अच्छा लग रहा है फोटो, लेकिन उस पर लाइक पे क्लिक नहीं करेंगे, राइट। और कमेंट करने में कितनी टाइम लगता है? 1-2 मिनट कमेंट लिख दो कुछ। I must say, sir, very smart way that subscribe the channel. राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से छोटी छोटी हेल्प है जो आज की प्रेजेंट जमाने की रिक्वायरमेंट है, राइट। लेकिन हम ये छोटी छोटी हेल्प भी नहीं करते हैं। उस तरह हम दूसरी हेल्प क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को, जैसे लाइट का बिल भर दो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आप तो सब लोग अभी पढ़े लिखे हो, मोबाइल इतना यूज करते हो, मोबाइल में एप्लीकेशन कुछ डाउनलोड कर दो, पेटीएम कर दो डाउनलोड, और पापा को बोल दो कि लाइट का बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, उसको लिंक कर दो आपके पेटीएम से, कुछ भी करो। तो कहने का मतलब कि ये छोटे छोटे काम है, तो वो तो कर सकते हैं ना। मम्मी को चलो रसोई बनाने में 1 घंटा जाएगा, रोटी बनाओ सब्जी बनाओ, 2 घंटा बिगड़ेगा अपना, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे काम मत करो। लेकिन छोटी छोटी हेल्प तो कर सकते हो ना सब। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्प लेने से भी डरो मत, और हेल्प करने के लिए तैयार रहो। एटलीस्ट छोटी छोटी हेल्प करो। बड़ी हेल्प अगर आप नहीं कर सकते हो तो छोटी हेल्प करो। छोटी हेल्प से भी आप उनका जो प्रतिभाव है, उसमें जो रिस्पॉन्स है, वो आप देखोगे कभी, अगर पता चलेगा आपको तो बहुत मजा आएगा, राइट। तो किसी की भी तारीफ करना मत भूलो। मेरी यूट्यूब के चैनल पे अप्रिशिएशन का वीडियो है, वो देख लेना। जिग्नेश दीवान जी लिखोगे तो आ जाएगी सबसे पहले चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो। उसमें अप्रिशिएशन का, हाय सुरेश, उसमें अप्रिशिएशन का एक वीडियो है। तो अप्रिशिएट करना मत भूलो किसी को भी। थोड़ा भी कोई बोले, अभी जैसे पार्थ ने बोला, अभी चैट में लिखो कि पार्थ वेरी नाइस, वेरी गुड, या उसके बाद उसको ग्रुप में लिखो। ग्रुप में भी कोई नहीं लिखता है, ग्रुप में भी 1 या 2 लोग लिखते हैं। अगर सब लोगों को अच्छा लगा है तो जरूर लिखना चाहिए। अगर अच्छा नहीं लगा है सपोज, तो एटलीस्ट उसके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करने के लिए लिखो। भले ही आप मन मन में गाली दो कि अरे यार क्या बोला, समझ में नहीं आया, हमारी 15 मिनट चली गई, बेकार में टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी लिख दो, क्योंकि उसने तो टाइम स्पेयर किया ना। तो फिर भी लिख दो वेरी अच्छा, गुड अगर समझ में पार्थ। नहीं आया तो आई मस्ट से यू कैन टेक्स्ट मी. हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अप्रिशिएट करना मत भूलो। तो ये बात हुई हेल्प के बारे में, जो चाणक्य ने बोला। दूसरा है शांति के बारे में। तो शांति रखने से हमारे पास जवाब आते हैं। जब भी आप एग्जाम लिखते हो, तो पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, तो डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो लेवल है वो सबका लेवल होगा। मतलब आप जिस लेवल पे, आप 60% पे, 70% पे, तो आपके लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, वो सब वो सेम लेवल के होंगे। अगर आपको 3 नहीं आते हैं तो एटलीस्ट उनको 2 या 1 तो नहीं आएंगे, वो तो कंफर्म है। ऐसा तो एकदम पॉसिबल नहीं है कि आपको 3 नहीं आएंगे और आपके लेवल के 70% के लेवल के सारे बच्चों को तीनों आ गए और सिर्फ आपको नहीं आया, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू करते हो, और अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो आप शांत रहो। शांत रहने से उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये कहने की बात है, जब प्रैक्टिकली आता है तो सब लोग डर जाते हैं। लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने पहले बोला था सेशन में, कि मेंटल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए बेटा।
तो मेंटल एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन तो हर बार आएगी नहीं ना, जैसे पार्थ ने बोला कि वॉर हो गया, तो हमारे साथ वॉर तो होगा नहीं हर बार। एग्जाम आएगी तो महीने में 2 महीने में एक बार आएगी, तो अपने आप पेपर लिखो, अपने आप कोई क्वेश्चन पेपर लेके ऐसा सोचो आप मेंटली कि आप जेडब्ल्यू की फाइनल एग्जाम दे रहे हो या आपकी फाइनल ईयर की फाइनल एग्जाम दे रहे हो, और फिर वो एग्जाम लिखना शुरू करो एकदम टाइम टू टाइम। ऐसा एटमॉस्फेयर जो लोगों को स्ट्रेस दे सकता है, वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके आप लोगों को काम रहने की प्रैक्टिस करना है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं सब सिचुएशन से, राइट। तो जैसा मैंने पहले भी बोला था कि मेरे भाई है आज, उसी की बर्थडे है आज मेरे भाई की, तो मैंने सेशन में एग्जांपल दिया था, याद है आपको, कि कोई सिंह चना का वो मूंगफली के छिलके डाल रहा था ट्रेन में, और मेरा भाई उठा रहा था, वो डालता जा रहा था और मेरा भाई उसको उठा के बैग में डालता रहा था। तो इस तरह के कुछ काम करो जिसमें आपको शर्म आती है, डर लगता है, तो उस तरह के कुछ काम करो जिससे आप इमेज कॉन्शियस हो अगर आप, तो वो आपकी चले जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम काम रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये कैसा है, मैंने क्यों किया बोला ये सब कि काम रहना कि जैसे कोई साधु सन्यासी बन के चला गया फॉरेस्ट में, तो उसको क्या है, काम रहने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की नहीं, कोई आएगा ही नहीं उसको परेशान करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि परिस्थिति हमें जनरेट करके काम रहने की कोशिश करना है। और पार्थ की बात सही है, मतलब चाणक्य की बात सही है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम शांत रहेंगे तो ही हम कुछ सोच पाएंगे, वरना हम सोच नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सब कंडीशंस में अगर हम शांत रहना सीखेंगे तो ही सही डिसीजन ले पाएंगे, राइट। और सबसे पहला उसने बोला जो गिनती वाला, तो काउंट करना है, तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि सामने वाले के पास क्या स्ट्रेंथ है, वो हम देख लेंगे एक बार। हाँ, सांख्य, सांख्य मतलब नंबर ना, सांख्य। नंबर। तो मतलब सामने वाले की स्ट्रेंथ हम देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा को रिलेट करके उसको थोड़ा अलग तरह से कैसे बोलता हूँ कि अभी हम लोगों को क्या चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए। किसी को मना है, प्रॉब्लम है अगर मैं बीएमडब्ल्यू दे दूं तो कोई मना करेगा? नॉट एट ऑल सर। नहीं करेगा ना। लेकिन मैं बोलूं कि बीएमडब्ल्यू में दूंगा, 1 महीने के लिए 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटा मतलब 12 घंटा, उसमें 1 मिनट भी कम नहीं। मैं आपको चैलेंज करके देता हूं, अगर 1 महीने के लिए आप 12 घंटे पढ़ो बिना कोई रेस्ट के, कंटिन्यूस एवरी डे 12 आवर्स, मैं आपको बीएमडब्ल्यू दे दूंगा। कहने का मतलब ये है कि हम सबको अभी गैप बहुत है, हमें क्या चाहिए और हम क्या कर रहे हैं अभी, वो दोनों में गैप बहुत है, राइट। तो या फिर तो जो चाहिए उसको कम कर दो, बीएमडब्ल्यू से मारुति कर दो कि सर हम 5 घंटा करेंगे, पढ़ेंगे, मारुति चलेगी, राइट। और या फिर तो बीएमडब्ल्यू अगर चाहिए तो 5 घंटे का बोलोगे, नहीं सर 12 घंटा नहीं 13 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन हम बीएमडब्ल्यू लेकर ही छोड़ेंगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोगों के बीच में क्या है, जो चाहिए और जो कर रहे हैं उस दोनों में गैप ज्यादा है, राइट। तो उसको किसी भी तरह कम कर सकते हैं, जो चाहिए उसको नजदीक लाओ, या फिर तो जो करते हैं उसको थोड़ा बढ़ाओ, राइट। तो ये स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा कोरिलेट करके मैंने ऐसे ही बोल दिया, वो शायद एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब कि स्ट्रेंथ देख लो कि सामने वाले की स्ट्रेंथ, मतलब बीएमडब्ल्यू की स्ट्रेंथ देख लो कि क्या है, कितने नंबर्स चाहिए हमें, कितने मार्क्स चाहिए, कितना टॉप करना है या नहीं करना है, उसके हिसाब से करो, फिर अपनी सोचो, मतलब स्ट्रेटेजी बनाओ, राइट, कि बीएमडब्ल्यू के लिए कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी। फिर आप बोलोगे कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करके मैं बीएमडब्ल्यू के बारे में सोच रहा हूं, तो उसके लिए आईआईएम का करना पड़ेगा, आईआईएम एमबीए में जाना पड़ेगा, एटलीस्ट बेस्ट क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, राइट। तो ये सब था जो मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है? मेघा, जसमीत, ऋत्विक, विवेक, सृष्टि? नो सर, नो डाउट्स। नो डाउट्स, एवरीथिंग क्लियर। तो बीएमडब्ल्यू चाहिए सबको 1 महीने के बाद? कौन रेडी है चैलेंज लेने के लिए? 12 आवर्स डेली વિધાઉટ બ્રેક। ડિસ્કાઉન્ટ જોઈએ સર, થોડુંક તો ડિસ્કાઉન્ટ જોઈએ ને। इसका बीएमडब्ल्यू में डिस्काउंट मળી જશે પછી, એક વ્હીલ વિનાનું बीएमडब्ल्यू 3 व्हील्स वाली।
ओके, तो वेरी नाइस पार्थ, थैंक यू एवरीबॉडी। पार्थ, प्रियंक, नियति, मेघा, प्रार्थी, जसमीत, ऋत्विक, विवेक, सृष्टि, थैंक यू। हमें सबको जितनी बड़ी हो सके हेल्प करनी चाहिए सबको, लेकिन फिर भी छोटी छोटी हेल्प तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, राइट? तो काम रहना है, सामने वाले की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, शांत रहना है कोई भी परिस्थिति में, राइट? ये तो एक्चुअली हमारे लाइफ का गोल रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था, आप सबको याद होगा, मैं सेशन में बोलता हूं कि पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कोई भी सिचुएशन में, बड़े से बड़ी या छोटे से छोटी, कोई भी सिचुएशन में शांति बनाए रखे, शांत रहे, कूल रहे, राइट? ऐसा पूरी दुनिया में एक भी इंसान नहीं है। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की है। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।